वेलकम फ्रेंड। आज हम बात करेंगे नेचुरल वेंटिलेशन के बारे में। ये यूनिट हमारा बिल्डिंग सर्विसेज 3 के अंडर में आता है। यूनिट 1 में एंड अकॉर्डिंग टू द करिकुलम ऑफ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे। सावित्रीबाई फुले पुणे, सो सॉरी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे। Okay, so this is my small intro. I skip this slide. These are the basic outline of the presentation. So start with a general introduction, then after that why we require the natural ventilation, then after that the comparison between what is the ventilation and natural ventilation, then after then how it's related to our historic cultural, then after that what is the physical property of the air, then relevance with turbulence, then how it relevance with IAQ, and after that the principle, then there are some design recommendation, then sorry, then what is the ventilation rates, then how do we control through the architectural elements, and which tools and software we have used for this designing ventilation, natural ventilation, and what is the graphical tools for representation of this, and at the end with the case studies, and at the end with references. Okay, so what is ventilation says? So we required ventilation. It doesn't matter it's mechanical or natural. So the function for the same for the both. So there are major four function for the ventilation. The first one is the air quality control. So in this section we control the क्वालिटी ऑफ एयर लाइक कि बिल्डिंग में जितने भी हमारे एयर के कंटामिनेंट्स हैं उनको क्लीन करना। जैसे हमारी इंडोर में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे कि जो कि इंटीरियर से जब एयर रिफ्लेक्ट टच करती है तो देयर आर सम वीओसी कंपाउंड थ्रू द पेंट्स और थ्रू द अदर gums and through the adhesives. We have released so many components. Even through the human or living organism they release CO2. So for controlling that contaminant we require the air quality control. Then the second one is the direct advective cooling. So the direct advective cooling is directly relevant to the with कि हमारे जो बिल्डिंग के इंटीरियर्स के थ्रू जो उनको उनको उनके थ्रू जो एयर वार्म होती है या उनके थ्रू कन्वेक्टिव होती है तो उनको हम लोग कूल करने के लिए थ्रू द आउटडोर एयर। बट डिपेंड कि बाहर की कंडीशन फेवरेबल हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर की कंडीशन में ज्यादा एयर गर्म हो और हम उसको डायरेक्टली नेचुरल वेंटिलेशन के थ्रू कूलिंग करने की कोशिश। देन द सेकंड वन थर्ड वन इज द डायरेक्ट पर्सनल कूलिंग। So it is directly relevant to the our occupant, our person that they will stay in that the inner environment. So for cooling that uh, person, so this the third term is used. Then the fourth one is the indirect night cooling. So to direct cool building interiors, pre-cooling thermally massive components of the building fabric over a thermal storage system with a cool night time outdoor. Generally एक्चुअली क्या होता है अगर हम देखें तो हमारे नाइट टाइम में क्या होता है, हीट जो है रिवर्स साइड होती है कि बाहर ऑलरेडी ठंडा होता है तो बाहर हीट ना ट्रांसफर होने के बजाय वो इनर साइड जो घर की जो गर्मी होती है उसमें हीट ट्रांसफर होती है। तो उसको एक्चुअली हम लोग को कूलिंग करने के लिए वी यूज सम वेंटिलेशन टेक्निक। सो फॉर नाइट कूलिंग we have do. So basic we have a four reason for the ventilation. The first for the controlling the contaminants, second for the cooling building interiors, the third one is called for the cooling personal occupant habitants, and the fifth one for night cooling. Fourth one, sorry. Okay, why we need natural ventilation? So why we need natural ventilation? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एयर इज जो हमारी एयर है वो एक्चुअली फोर्थ एलिमेंट मतलब मेजर एलिमेंट क्लासिकल एलिमेंट में आती है ह्यूमन के लिए। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी इज द फर्स्ट, बिकॉज अगर एयर नहीं होगी तो हम ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। सो एक्चुअली में वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड, बट नेचुरल वेंटिलेशन इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज क्या होता है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन इज आल्सो डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी। सो यू कैन इमेजिन कि कोई बिल्डिंग है और उसमें इन द केस इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्सिव इन द मैकेनिकल वेंटिलेशन केस, बट सिनारियो इज दैट कि in some few reason there is the no electricity, then how it is control the ventilation property. So that's why the natural ventilation is obviously required for the
previous slides, 4 parameter consider. So we need a natural ventilation in our interior spaces, and the main reason to control the contaminants and to control the oxygen level in our air, to ventilate the other VOC compound and even also the humidity compound. So that slide the explain the thing. Okay, and what is the ventilation and what is the natural ventilation? So as clear, it's very just a word play. So ventilation is basically it's a terminology to replace the air in a enclosed space. It's called a ventilation. And natural ventilation, there we are not using any we are using environmental factor to control the ventilation. Like we know the wind have done unit also, and wind have the direction also. So through this property we have controlled our indoor air amount. So that terminology is called the natural ventilation. So in the image we can see like there are few passive technique they using a tower in the hot climate. So through this tower they enter the air in a enclosed space, and through other things they have proper ventilation for to crossing the hot air. We will discuss in the upcoming slides. So ventilation is basically the whole terminology, and natural ventilation basically is the part of the ventilation. So if we control the ventilation through our natural factors, so it's natural, means it's a passive factor in the building, so it's a natural ventilation. So अगर हम देखें, so जितने भी हमारी civilizations हुई हैं, डेवलप्ड हुई हैं, उन सब में एयर को एक कल्चर के साथ जोड़ा गया है. सो उनको देयर इज सम नेम गिवन गा. तो अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, सो वी नो इट्स अ मारुत और पवन. ओके, सो even according to the table we can see according to the other civilization what they said in every element. So this slide is just only for reference for giving a historical one. Okay, so here we discuss about the physical properties of the air. So here we discuss pressure, volume, density, mass and temperature. So the first we discuss the pressure. प्रेशर क्या होता है? दबाव. सो जनरली अगर हम बात करें तो प्रेशर जो होता है, अगर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो एक गुब्बारा होता है. तो जैसे ही हम उसको फुलाते हैं, तो जितना ही हम उसमें एक्चुअली देखा जाए तो प्रेशर जो होता है बेसिकली दो पार्टिकल्स को आपस में एक दूसरे को के ऊपर जो पड़ने वाला प्रेशर होता है, दबाव, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर. मतलब दबाव जो एक दूसरे को धक्का देते हैं, that amount of the वो pressure it's called actually I'm so sorry एक एग्जांपल देते हैं. तो जैसे हम जब कोई गुब्बारा या कुछ फुलाते हैं तो वो जैसे 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 वो फूलता जाता है, तो अगर आप हम देखेंगे हमारे 3 ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होते हैं लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो अगर हम किसी जगह देखेंगे तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम साथ में बने रहते हैं, तो वो उतना प्रेशर उनके पार्टिकल्स आपस में उतने बॉन्डिंग जो होता है वो नहीं करता है. बट लिक्विड के देखें, अगर लिक्विड को हम किसी एक सिलेंडर में फिल करें तो लिक्विड जो होते हैं वो सिलेंडर के आउटर बॉक्स में एक प्रेशर क्रिएट करते हैं. और जब हम गैसियस कोई एलिमेंट भरते हैं तो गैसियस जो होता है वो उस सिलेंडर के चारों सतह पे, मतलब द होल सिलेंडर के सरफेस पे वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो भागते हैं उसके मॉलिक्यूल. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रेशर, मैंने समझाने के लिए बोला आपको. तो इसका एक और एग्जांपल है कि आप जितना भी आप गुब्बारे के अंदर एयर भरते जाइए तो जो एयर्स होती है वो गुब्बारे के जो आउटर सरफेस है वो उनके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करती है. दैट्स वाई द जो हमारा गुब्बारा होता है वो इलास्टिक होता है. दैट्स वाई इट्स चेंज अवर साइज. So that is the pressure basically. So pressure जब बढ़ता है तो obviously है कि amount of the molecules भी हमारा बढ़ता है. amount of the molecules से relevant is the density. तो density basically क्या होती है कि amount of the molecules उस पर्टिकुलर एलिमेंट के. जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होता है वो काफी डेंस होता है. जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग जो होती है वो थोड़ा दूर दूर होती है, और गैसियस की जो डेंसिटी होती है वो कंपैरेटिवली तीनों स्टेट मैटर में सबसे कम होती है. So density is directly relevant to the molecules, number of molecules, कि how much density एक किसी particular space में. Then volume is directly relevant to the design term कि like कितने space में वो जगह घेरती है, कितने space में
तो volume is directly relevant to the design term, and uh, mass is directly relevant to the weight. ओके एंड द टेम्परेचर, सो द टेम्परेचर जो होता है बेसिकली किसी दो मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है एक तरीके से, कि जैसे कोई दो मॉलिक्यूल आपस में जब लड़ते हैं तो जो फ्रिक्शन से जो हीट जनरेट होती है, सो दैट द वैल्यू ऑफ दैट हीट, इट्स कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ दैट सबस्टेंस. ओके, देयर इज द कंडीशन. सो इफ अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो किसी जगह पे भी तो उसका जो वॉल्यूम अगर सेम रहेगा तो मास ऑफ द एयर एंड इट्स डेंसिटी बढ़ती है, ये एक कंडीशन होती है. अगर हम यहाँ देखें तो ये तीनों प्रॉपर्टीज ऑफ एयर का दिखाने के लिए रिलेशन के लिए मैंने शो किया है कि द वॉल्यूम जो है वो हमारा सेम है, तो डेंसिटी जो है अगर हम ज्यादा रखते हैं तो 23 डिग्री टेम्परेचर, तो आप देखेंगे 23 डाउट, यहाँ 23 मॉलिक्यूल है किसी गैस के, उसी सेम गैस के 13 मॉलिक्यूल्स हैं और इसी के 8, तो जितने ही डेंसिटी कम होगी उतना ही टेम्परेचर हमारा ज्यादा होता है. दैट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर. ओके, सो अब हम आज बात करेंगे, बिकॉज हम बात कर रहे हैं एयर के फ्लो के पैटर्न के बारे में, तो ऑब्वियसली वी नो कि जो दो टाइप के फ्लो के मेथड होते हैं किसी भी गैसियस में. एक होता है लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. थ्रू द फिगर वी कैन इजिली चेक कि जो हमारा चाय का प्याला होता है उसमें हम देख सकते हैं इजिली कि जो हमारा पहले स्टार्टिंग का जो वेपर उठता है वो एकदम सीधा जाता है, देन आफ्टर दैट इट्स लुक लाइक एन कर्ली, लुक्स कन्वर्ट इनटू द कर्ली वेव. सो हमारी जितनी भी स्टडी होती है गैसियस पे, वो सारी हमारी टर्बुलेंट फ्लो पे होती है, ना कि लैमिनार फ्लो पे होती है. सो यही स्लाइड्स का एम है बताने के लिए. तो हम आगे जितनी भी स्टडी करेंगे या फिर जो भी प्रैक्टिकल वे में हमारी रिसर्च होती है जितनी भी, वो सारी की सारी टर्बुलेंट फ्लो पे ही होती है, ना कि लैमिनार फ्लो पे. आई जस्ट टेल यू कि लेमिनार फ्लो जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, दैट्स वाई हम इस पे कोई स्टडी नहीं करते हैं. ओके, सो वेंटिलेशन से जुड़ा हुआ ही हमारे एक स्टैंडर्ड और टर्म्स में है कि IAQ, इंडोर एयर क्वालिटी. तो ऑब्वियसली है कि खिड़की खुली है तो ऑब्वियसली वेंटिलेशन हो रहा है थ्रू द नेचुरल वेंटिलेशन टेक्निक, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो प्रॉपर वो एयर जो है वो वहाँ पे रहने वाले ऑक्यूपेंट और हैबिटेंट के लिए ठीक भी है या नहीं है. सो इन सब चीज की जो स्टडी है वो बेसिकली हम लोग IAQ के अंडर में करते हैं. ओके, देयर सम स्टैंडर्ड ऑफ कोड जो कि इसमें नॉइज लेवल को ऐड करके काफी सारे पैरामीटर को ऐड करके देन दे विल मेक अ सेक्शन लाइक इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी. सो बेसिकली दो एम होते हैं इन IOAQ के. फर्स्टली कि कूलिंग एयर एंड ऑक्यूपेंट थ्रू टेम्परेचर रिडक्शन और कूलिंग बाय इवापोरेशन यूजिंग इंक्रीज्ड एयर वेलोसिटी. एंड द सेकंड वन बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने ऑक्यूपेंटेड के हिसाब से जो एयर है उसको कूलिंग और हीटिंग करना, एंड देन यूजिंग इवापोरेशन टेक्निक एंड एयर वेलोसिटी को बढ़ाना घटाना, ये चीज वर्क होता है. एंड द सेकंड वन मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट एयर एक्सचेंज रेट टू कीप अ प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ एयर, मेकिंग श्योर इट नॉट स्मेली, नॉसिटिंग विद टू लिटिल ऑक्सीजन और टू मेनी पॉल्यूटेंट. सो इट डायरेक्टली सेड कि कोई भी उसमें ऐसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होने चाहिए, ऑक्सीजन का अमाउंट ठीक होना चाहिए, स्मेली ऑडियोनेस नहीं होनी चाहिए, एंड देन कुछ महक ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड कंपोजिशन ऑफ द एयर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए रेट वेंटिलेशन का, कि ऐसा ना हो कि बाहर से बहुत एयर मिक्स हो रही है और अंदर की जो एयर टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता जा रहा है. सो ये चीजें दो मेंटेन होने चाहिए. पहला एयर में हीट की अवेलेबिलिटी कम हो और एयर की वेलोसिटी से रिलेवेंट, एंड द सेकंड वन एयर की प्रॉपर्टी से रिलेवेंट. अगर IAQ हमारी मेंटेन नहीं है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं. सो दैट आर दे हैव शोन कि फर्स्टली कि इन्फेक्शन डिसीज कॉज बाय एयरबॉर्न वायरसेस, उनसे वायरसेस और बैक्टीरिया एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं. देन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर ह्यूमिडिट एयर बहुत है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है. सो फॉर एग्जांपल इन ह्यूमिडिफायर विद बिल्डिंग एनवेलप कंस्ट्रक्शन. दूसरा एलर्जीज, अस्थमा, ये बढ़ती है अगर ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट है तो. देन लंग कैंसर कॉज बाय एक्सपोज तंबाकू स्कोप, लाइक किसी एक रूम में कोई तंबाकू हैव टेकन, सो देन ऑन दैट केस क्या कि सम अनदर बॉडी इज नॉट टेकिंग द तंबाकू, बट द चांसेस ऑफ द लंग कैंसर द फॉर सेम for both. So these type of the few are like the main important is SBS, sick building syndrome.
सो अगर हम इसकी बात करें तो जनरली क्या होता है कि अगर कोई एयर कंडीशनिंग या कि जहाँ प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं होता है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम कि अगर कोई लेक्चर हॉल है, सो वेयर इज बेसिक आई विल टेल एग्जांपल कि अगर वो लेक्चर हॉल प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है कि लाइक वो लेक्चर हॉल की कैपेसिटी है नियर अबाउट 400 पर्सन एंड इट डिपेंड कि वो 4 आवर और 6 आवर की कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन नहीं है, तो इशू क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ के पर्सन्स को थोड़ा सा लेजीनेस एंड बिकॉज क्या होता है कि उसको वेंटिलेशन वो बार बार हवा कंडीशन होकर के रिटर्न होकर के आती है, बट इट नॉट मिक्स विद द आउटर एयर, सो दैट द रीजन द सिक बिल्डिंग सिंड्रोम प्रॉब्लम इज increases. ओके, सो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द नेचुरल वेंटिलेशन? हम अगर सेकंड टर्म से बात करें तो क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है नेचुरल वेंटिलेशन का? तो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सिंगल साइडेड, क्रॉस वेंटिलेशन एंड स्टैक वेंटिलेशन, दीज आर द वेरी बेसिक। तो हम लोग जनरली गो थ्रू देखेंगे। तो सिंगल साइडेड वेंटिलेशन क्या, लाइक एक क्यूबाइड शेप में अगर कोई फॉर्म है तो हम लोगों ने लेंथ वाइज साइड पे ओनली जस्ट एक साइड ही विंडो दैट प्रोवाइड की है, तो उससे क्या होगा, विंडो का एक ही साइड से इनलेट है और आउटलेट है। So this type of ventilation is called the single side ventilation. We avoid this type of ventilation. बट अनफॉर्चुनेट अगर हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां पे हमको ही ये देना है, देन उसमें भी एक कंडीशन होती है कि हम अपनी हाइट का 2.5 गुना से ज्यादा डेप्थ सिंगल साइड वेंटिलेशन में प्रोवाइड नहीं करते हैं सीलिंग हाइट का। Like single side natural ventilation should be avoided. I already told to you. Not suitable for deep plan spaces. Depth of penetration is restricted to approximately 2.5 into ceiling height. So that is the condition is applied on that type of ventilation. So what is the advantage? So single side ventilation is popular because opening are located on only one face of an enclosed space. So this is a very less advantage in that section. So the another one is a very proper in a बिफोर दिस आई विल जस्ट टेल यू कि अगर हमें अपनी बिल्डिंग में वेंटिलेशन करना है तो हम दो मेथड से कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द ओपनिंग इन द वॉल एंड द सेकंड वन इज द ओपनिंग इन द रूफ। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो वेंटिलेशन देखा जाए तो वो जनरली जितने भी क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है वो हमारी वॉल पे ओपनिंग के थ्रू हो रहे हैं। ओके, सो द क्रॉस वेंटिलेशन की बात करते हैं मतलब देयर द ओपनिंग अपॉन अपोजिट फेसेस ऑफ द वॉल। सो ऑन दैट केस जब विंडो हमारी एक साइड से इनलेट एंड अदर साइड से आउटलेट होती है तो दैट टाइप ऑफ वेंटिलेशन इज कॉल्ड द क्रॉस वेंटिलेशन। What are the profit? So the high rate of ventilation is possible under favorable weather condition. अगर favorable weather condition है तो high rate of the ventilation इससे possible हो सकता है। So these are the advantages. It can be related with deep plan spaces. जो deep plan spaces में single sided ventilation work नहीं करते थे वो इसमें properly work कर सकते हैं। For equivalent size of opening, cross flow, cover as a larger zone and the single sided larger zone then the it's a comparatively obviously single side opening से हम काफी ज्यादा लार्जर जोन कवर कर सकते हैं फॉर वेंटिलेशन। ड्रॉबैक क्या है? इफेक्टिव क्रॉस वेंटिलेशन रिक्वायर रिलेटिवली क्लियर पाथ, एक्चुअली दैट इज द इम्पोर्टेंट। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने डीपर स्पेस में बीच में कहीं कोई पार्टीशन ना कर दें, तो थ्रू दिस क्या होता है कि हमारा क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा। सो फॉर द क्रॉस वेंटिलेशन वी रिक्वायर्ड अ क्लियर पाथ इन अवर इंटीरियर्स। So another inappropriate window design and positioning may result in the disruptive draft. So that is also another factor कि अगर हमारी विंडो की डिजाइन उस तरीके से इनअप्रोप्रिएट नहीं है तो वो भी हमारे नेचुरल वेंटिलेशन को इफेक्ट करेगी। Then another the design of the interior light can be more complex than for the single sided solution obviously. Okay. The last minute says he task flow design from the basic of the best practices in natural and mixed mode ventilation system. So they said कि अगर हमारा जो क्रॉस वेंटिलेशन का डिजाइनिंग है ये बेसिकली हमारी नेचुरल और जब कभी हम मिक्स मोड में वेंटिलेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं तब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी बिल्डिंग में प्रोवाइड कराती है। मिक्स मोड मींस जब हम नेचुरल और मैकेनिकल दोनों की बात करते हैं। ओके, सो दिस इज द स्टैक वेंटिलेशन। सो बेसिकली स्टैक वेंटिलेशन जो होता है वो हमारा ओपनिंग इन रूफ्स होता है जनरली। तो अभी हम बात कर रहे थे कि वेंटिलेशन थ्रू द वॉल्स, तो यहाँ पे जो है हमारा वो वेंटिलेशन थ्रू द रूफ। जनरली होता क्या है किसी इनक्लोज स्पेस में देयर आर टू थिंग्स कि हॉट एयर जो होती है वो धीरे धीरे एयर का जब टेम्परेचर बढ़ता है because due to appliances, due to our enclosed space, due to human activity, तो होता क्या है कि जो वार्म एयर होती है वो
ऊपर इकट्ठा होती है हमारे रूफ की साइड पे। सो एंड जो हमारी कूल एयर होती है वो हमारी विंडो से इनलेट होती रहती है। सो देन आफ्टर दैट क्या होता है समटाइम्स कि अगर हमारी जो ऊपर हॉट एयर है, अगर हमारी रूफ में कोई ओपनिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस जो हॉट एयर है वो हम अपने थ्रू द ओपनिंग इन द रूफ वी विल मिक्स इनटू आवर आउटडोर इन्वायरमेंट। सो जब ये मेथड के थ्रू हमारा बॉयंसी, इस इफेक्ट को हम लोग बॉयंसी इफेक्ट बोलते हैं, जब इस मेथड के थ्रू हम लोग अपनी किसी इनक्लोज्ड स्पेस को वेंटिलेट करते हैं, so that type of method is called the stack ventilation. So through the Fahrenheit scale, I will just tell you it requires a minimum difference of 3 degree Fahrenheit between indoor and outdoor temperature. तो ये तभी पॉसिबल है जब 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस हो इंडोर और आउटडोर टेम्परेचर में। अगर इससे कम होगा तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो ऊपर की हवा है वो गर्म की जगह ऊपर गर्म ही जस्ट स्टोर रहेगी, बिकॉज क्योंकि आउटडोर में उतना डिफरेंस नहीं है। सो मिनिमम 3 डिग्री फ़ारेनहाइट डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है फॉर द स्टैक इफेक्ट। ओके, देयर आर सम रिकमेंडेशन, डिजाइन रिकमेंडेशन। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर सिंगल साइड वेंटिलेशन है तो हम लोग 2.5 टाइम से ज्यादा डेप्थ नहीं दे सकते, एंड द वेंटिलेशन एरिया शुड बी बिटवीन 5 से 10% ऑफ द रूम फ्लोर एरिया। तो अगर हम दे ही रहे हैं सिंगल साइड वेंटिलेशन तो अपने फ्लोर एरिया का 5 से 10% जो होता है वो हमको क्या बोलते हैं कंसीडर, उतना हमको वन साइडेड वॉल पे लेना होता है। ये हमारे लिए कंपलसरी है। सो then another is the cross ventilation. So cross ventilation basically इसमें उन्होंने एक शो किया हुआ है कि जितना भी हम डेप्थ वाइज लेते हैं तो वो जो डेप्थ है वो हमारी वो लाइक दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज शोन द बिल्डिंग डेप्थ। सो तो ये बिल्डिंग डेप्थ जो है वो हम अपनी सीलिंग हाइट का 5 टाइम मल्टीप्लाई से ज्यादा नहीं लेना चाहिए फॉर प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन। Okay, the third one is called the stack ventilation. So we through the section we can easily judge कि this is like an any commercial space or okay like this space is called the atrium basically. So हम लोग में ये एक डिजाइन रिकमेंडेशन है कि जो ये स्पेस है एट्रियम तक का, तो ये जो डेप्थ है ये 5 टाइम ऑफ सीलिंग हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्टैक वेंटिलेशन के केस में। So these are the few design recommendation to relevant with the natural ventilation. Okay, so what is the ventilation मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में हम वेंटिलेशन रेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है, सॉरी हम उस पर बात करते हैं। अगर हम कहीं पे भी किसी भी इनक्लोज स्पेस में वेंटिलेशन कर रहे हैं तो हम 3 मेथड से कैलकुलेट चीजें को कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट। तो पहला चीज जो होता है वो हम बात करते हैं कि कौन कौन से कंटामिनेंट्स को हमें अलाउ करना है इंटीरियर स्पेस में और कौन कौन से क्लोज स्पेस में नहीं करना है। तो द फर्स्ट इज वेरी रिलेवेंट टू द chemical property, or we say is a chemical property of air, or we say the contaminants of air. Then second one is relevant with the heat dissipation. तो हीट डिसिपेशन मतलब कि अंदर की हीट गर्म कितनी है तो बाहर की हीट कितनी है, तो उनका जो ट्रांसफर है कि कितनी हीट को हमें बाहर एयर को मर्ज करेंगे कि ताकि अंदर की हीट या कूलनेस को कंट्रोल कर सकें हीट को, तो दैट मेथड इज कॉल्ड बेसिकली हीट डिसिपेशन। एंड द थर्ड वन इज द डायरेक्टली रिलेवेंट टू एयर चेंज, कि अंदर की कितने अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर को हमें बाहर की हवा से रिप्लेस करना है, दैट मेथड इज कॉल्ड द एयर चेंज मेथड। सो जनरली हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन में स्टडी करते हैं वो लास्ट वन एयर चेंज मेथड से ही करते हैं। सो मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट्स तो की बात करें तो देयर आर द फ्यू पॉइंट की नंबर ऑफ कितने ऑक्यूपेंट उस रूम में होते हैं, उनकी एक्टिविटी लेवल क्या है, यानी कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई चल रहा है या गेम खेल रहा है, सो दैट वाई ये सब हम स्टडी करते हैं। देन अमाउंट ऑफ द टाइम ऑक्यूपेंट स्पेंड इन द रूम, कितना वो समय स्पेंड कर रहे हैं, एंड द वेंटिलेशन रेट क्या है उस कमरे की। ओके, so these are the mathematical equation. Through this we calculate the contaminants, control the contaminants in the air. Then the second one is equation is relevant to the heat dissipation. So we can easily see okay, there is the delta T, so the temperature difference it's added. So through this the equation we can check the amount of airflow in a term of heat dissipation.
the this one, the third one, Q is equal to V into ACH, यानी volume into air changers, and Q is the quantity of ventilation rate or quantity of air, we say it's under some book. So that method, this formula used in a air changer method. So in this table I have just mentioned which type of requirement in the which type of requirement or which type of building typology in this column, in this, and how many of air changer required in particular building typology. So basically air changer होता क्या है? So एयर चेंजर को जो हम लोग एक एस्पेक्ट लेते हैं वो आवर के टाइम के बेसिस पे लेते हैं. अब हाउ इट्स कन्वर्ट, हाउ इज मेजर. तो बेसिकली अगर हमारा कोई एक वॉल्यूम है, लाइक हम एक कंसीडर करते हैं कि इनक्लोज स्पेस 3 मीटर बाय 3 मीटर एंड बाय 3 मीटर, so we just calculate, so then the volume is near about 20 is exactly 27 मीटर क्यूब. so होता क्या है कि अगर हम वो मान लीजिए इट्स अ कैफेटेरिया. सो कैफेटेरिया में हमारे पास देयर इज द स्टैंडर्ड के जो एयर चेंजर हैं वो लगभग 12 से 15 के बीच में एक वैल्यू होनी चाहिए. सो अब बेसिकली इसका 12 एंड 15 का मीनिंग क्या हुआ? सो बेसिकली क्या होता है कि जो 27 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम है एयर का, सो उसमें क्या है कि एक घंटे में वो जो भी एग्जॉस्ट फैन हम लगाएंगे वो एग्जॉस्ट फैन एक घंटे में 12 बार, यानी कि 27 मीटर क्यूब 12 बार वो हवा को अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगा. तो अगर हम डिवाइड करके देखें तो वो पूरा रूम का एयर वो 5 मिनट में एक बार पूरी रूम की एयर को रिप्लेस करेगा. तो तभी वो एक घंटे में 12 बार कर पाएगा. सो दैट द वैल्यू ऑफ द ACH इज कॉल्ड द 12 ACH पर आवर. और वो वॉल्यूम, तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग जो है ACH कैलकुलेशन करते हैं. जस्ट टेल यू द एग्जांपल कि ACH बेसिकली क्या होता है. सो ACH मींस कि एक घंटे में वो किसी पर्टिकुलर रूम की हवा को कितना वो रिप्लेस कर रहा है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द ACH. ओके, अब बात करते हैं कि हम अपने नेचुरल वेंटिलेशन को, अगर हम मैकेनिकल पे नहीं है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे, तो विच टाइप ऑफ पैसिव ट्रीटमेंट आर यूज्ड इन आवर बिल्डिंग और आवर डिजाइन. सो द फर्स्ट थिंग इज windows, or we say it's a fenestration, some will say. So it's a very important factor. So when we design the building, so it's a matter कि हम कितनी कौन से टाइप की विंडो यूज कर रहे हैं, कितने परसेंट उसकी ओपनिंग है, क्या मटेरियल है, etc etc. Okay, so ventilation is not working in a case of fixed window. Firstly, so if we are thinking कि हम फिक्स विंडो दे रहे हैं और वेंटिलेशन रेट क्रॉस वेंटिलेशन या फिर सिंगल साइड वेंटिलेशन पॉसिबल होगा, तो ऐसा नहीं होता है. सो fixed window is not suitable in a, even not application in the case of ventilation. Okay, then there are few of some passive treatment. मैं इनके बाद में अपनी another units है जो कि हमारी उसमें डिस्कशन करूंगा, बट यार हम अपना एक छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं. So the another term is called a wind scoop. Through the sectional diagram we can understand कि there is the some like एक inclined एक बाहर एक एलिमेंट निकला हुआ होता है, that is called a scoop. like अगर हम देखें तो अपना there is the scoop in आइसक्रीम. when we take up purchase आइसक्रीम, so उसमें एक स्कूप दे विल यहाँ ऊपर एक रखते हैं. तो सेम इज लाइक दैट कि एक हमारा चिमनी जैसा एक बाहर एक स्पेस निकालते हैं जिसमें लूवर्स होते हैं. तो उनके थ्रू हम लोग जो है बाहर की जो हमारी ब्रीज होती है उनको कैच करके ठंडा करके हम अंदर की तरफ फ्लो करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, और फिर जो हॉट एयर होती है उनको इस तरफ की ओर से वेंटिलेट करते हैं. तो इस टाइप की टर्मिनोलॉजी को, एयर कैच करने को हम लोग विंड स्कूप बोलते हैं. लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है. विंड स्कूप आर लिमिटेड बाय देयर एनवायरनमेंट. नो मैटर हाउ, आपने इसमें मैटर नहीं करता कि आपकी वो कैसे डिजाइन है या नहीं. अगर आपके उस लेवल पे एडिक्वेट एयर फ्लो अवेलेबल नहीं है तो विंड स्कूप प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. So that is a positive also negative point of the wind scoop. So for the wind scoop designing it must be कि हाँ उस लेवल पे एयर फ्लो अवेलेबल होना चाहिए. Okay, so the next is the wind tower. So
बेसिकली ये यूज होता है जनरली यहाँ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होते हैं। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइपोलॉजीज होते हैं। होता क्या है कि ये इस लेवल से एयर को कैच करते हैं एंड देन इसके बाद यहाँ पे एक इवापोरेशन सिस्टम होता है, like they are using some water vapor or other things. Through this they cool their air and then flow on the this side, बिकॉज जो कूल एयर होती है वो डाउन साइड नीचे की ओर बैठती है। देन आफ्टर दैट इसी कूलिंग टावर के अनदर पोर्शन से जो हॉट एयर होती है वो उसके अपोजिट साइड से फ्लो हो जाती है एनवायरनमेंट में। बट विंड टावर की एक खराबी है कि हम इनको केवल ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर के लिए ही यूज कर सकते हैं, मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर के लिए विंड टावर को हम यूज नहीं कर सकते हैं। Then another term is called a chimney. So wind tower and chimney working principle are almost same, but there is the only one difference कि चिमनी पैटर्न के मेथड को हम लोग मल्टीपल स्टोरी के कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते हैं और इसको मॉडर्न ट्रेडिशन में यूज भी किया जाता है। अगर हम वही सेम फंक्शन इस तरीके से यूटिलाइज करें कि एवरी फ्लोर हमारे जो है विंड को थ्रू द स्टैक इफेक्ट they ventilate, so that method is called the chimney, wind chimney. Then double facade system. So through double facade we can see the figure कि जो हमारी हीट है वो एक तरीके से देखा जाए डबल फसाड या स्किन मेथड, बोथ आर द चिमनी मेथड आर सेम। लाइक जो हमारी वार्म एयर इस दोनों फसाड के बीच में जो स्टैक होती है वो ऊपर एक मेथड पर जो हमारा आउटलेट है कट है वो उस तरफ की ओर से ये बाहर की तरफ आउट हो जाती है। सो दिस टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी इज बेसिकली यूज इन अ डबल फसाड सिस्टम। तो वेरी बेसिक मैं हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अनदर यूनिट पूरी डिजाइन पे है इस पे। सो then another passive treatment is called the atrium. So I already explained to its work on the stack effect concept. So they collect the air from every sides and they release the outdoor they release the air through the buoyancy effect in the upper environment. Then another is the ventilation chamber we have provided, then wings wall and deflection by hedges. So it's a very basic. So wings wall basically like अगर हम लोग कभी किसी बेसमेंट या उसमें जाते हैं किसी ब्रिज के नीचे से, तो at the entrance of that at the entrance of ब्रिज देयर इज द लिटिल बिट डिफ्लेक्स वॉल, मतलब इट एक एंगल पे इंक्लाइंड वॉल्स बनाते हैं, उन वॉल्स को हम लोग बेसिकली विंग्स वॉल बोलते हैं। तो विंग्स वॉल का जनरली यूज होता है हमारी एयर वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए थ्रू द वेंचुरी इफेक्ट। Then another one is the hedges. So hedges basically done from the landscape. So through the landscape we can turn the wind from one side to another side. So that the terminology also used in a by the passive method. Okay, another thing, there are a few tools, डिजिटल टूल्स और सिमुलेशन टूल। बेसिकली जब हम विंड की बात करते हैं तो हमारे सिमुलेशन टूल में जो यूज होते हैं, उसके अलावा बिसाइड दिस हम लोग CFD एनालिसिस करते हैं, कंप्यूटेशनल फ्लो डायनामिक्स, इन बोथ लाइक फॉर सॉलिड एंड फॉर लिक्विड। सो sorry, for liquid or for gas. So here is the air, so the state of matter. So for better result we are doing the CFD analysis is more preferable in that case. So there are the few software I listed here. So except this there are so many software also available according to their the norms by inner inner state norms or by the कंट्री नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री नॉर्म्स। लाइक किसी कंट्री में कोई स्टैंडर्ड्स हैं एयर को लेकर के, पैरामीटर्स को लेकर के, और किसी कंट्री या किसी उनके कंट्री के स्टेट्स में अलग अलग पैरामीटर है। सो थ्रू दिस देयर आर मोस्ट मेनी ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीवेयर और ओपन सोर्स बेस्ड। Another graphical tools is represent to the windrows diagram. So through this diagram we can understand two things कि विंड की स्पीड क्या है, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, और विंड की डायरेक्शन क्या है। सो विंड ड्राइव्स को बनाने का जो ज्योमेट्रिक पैटर्न है, हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बताएंगे आपको कि कैसे विंडरोज डायग्राम को हम लोग ड्राफ्ट करते हैं अगर हमारे पास जो डेटा होता है उसके बेसिस पे।
नेक्स्ट। सो अब हम बात करेंगे, अभी तक जो हमने बेसिकली कुछ जो पैसिव ट्रीटमेंट पढ़े हैं उनके बेसिस पे हमारे क्या-क्या प्रोजेक्ट हैं जिनके उन्हीं के बेसिस पे जुड़े हुए कि किस तरीके से उन बिल्डिंगों में प्रॉपर वेंटिलेशन हुआ है। तो हम बहुत तेज़ी से इसको जस्ट एक कोट टू रेफरेंस करेंगे कि कंचनजंगा अपार्टमेंट है। इट्स अ वेरी वेल नोन डिज़ाइन by Charles Korea. So in this type of building, they are using the stacking the apartment block, and they're using the cross ventilation technique. In this, they are using the chimney method basically in their building. In this, they are using the atrium technique. No, I'm so sorry. They are using the solar wind tower. Wind. I think they are using some louvers at the top, and they are collecting the air. So I think this is the atrium technique. I'm so sorry. So they are using double scan facade and atrium technique both. In this building, HRDC Namibia, they are using a cooling tower technique in their building design. For more detailed study, you can mail me. So I will just give you a whole description of that project. Okay, the another case study is a federal building, San Francisco, California. So they are using the double skin facade in their building for the natural ventilation technique. So these are my basic reference. The first one is the building ventilation. Their book, The State of the Art, meant St. Maurice and Peter Waters. Then another is the natural ventilation of building theory, measurement and design. Then another book is the natural ventilation building a design handbook. Then another is an introduction to natural ventilation for building. Thank you. Thank you so much. Whatever is your opinion, is your comment is welcome. And please convey to your opinion, comment, and anything. If you want any presentation, if you want any clarification, if you want anything in about the presentation, so you can directly mail or message me or text me. Thank you, and please like and subscribe my channel. Please like my videos and subscribe my channel.